بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، کیسے ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ املی آلو بخارے کا شربت کیسے بناتے ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی اور یہ پوچھوں گی کہ شادی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور ہم اپنے بچوں کو شادی کے لیے کیسے تیار کر سکتے ہیں اور ان کے لیے تربیت کی اور کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ املی آلو بخارے کا شربت تو بنانا بہت آسان ہے، لیکن شادی شدہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے آج سے میں اس ٹاپک پہ کام کر رہی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ شادی کیوں کی جاتی ہے اور شادی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے کس چیز کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اور شادی کس قسم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا، شادی کے اوپر سب بات کرتے ہیں کہ بچوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، بچوں کے لیے وہ کرنا ہے، آپ بچوں کے لیے جو مرضی کر لیں، لیکن جب تک ہم ان کو اویئرنیس نہیں دیں گے کہ شادی کیوں کی جاتی ہے، شادی کیا ہے، شادی ذمہ داری ہے، شادی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں بات کرتا۔ بچیاں تو بہت شوق سے شادی کی تیاریاں کرتی ہیں جناب، انہیں بہت سارا جہیز ملے گا، انہیں بہت ساری چیزیں ملیں گی، کپڑے ملیں گے، زیور ملے گا، لیکن یہ چارم صرف ہوتا ہے 2-4 دنوں کا، اور پھر اس کے بعد آپ کو اپنی اصل زندگی پہ آنا پڑتا ہے، اور اصل زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا، نہ کوئی سننا چاہتا ہے اور نہ کوئی سمجھنا چاہتا ہے۔ ہمارے اسلام میں اور ہمارے مذہب میں، دین اسلام میں بہت ہی سہولت ہے اور بہت ہی آسانیاں ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر نہیں چلتے اور ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہم 50% بھی ان کو سمجھ لیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، اور ہم اپنی بچیوں کی تربیت اور اپنے لڑکوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ شدہ زندگی کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ سوال ہمارے ہاں ناممکن ہے، بلکہ اس کا تصور تو صرف لو اور میرج تک ہی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس کا جواب ڈھونڈنا ہے، بلکہ شادی کیوں کی جاتی ہے اور یہ کس لیے کی جاتی ہے، اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں اس کا نام تو ذمہ داری ہونا چاہیے، شادی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم ذمہ داری کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر پہ پڑتی ہے تو کرنا آ ہی جاتا ہے، ذمہ داری سر پہ آ جائے تو خود ہی کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شادی نہیں بلکہ اس کا نام ذمہ داری ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، سیلف رسپانسبلٹی ہے۔ یہ سب کہنا چاہیے کہ رسپانسبلٹی دیکھتے ہیں بہت آسان ہے، لیکن جس نے اٹھانی ہوتی ہے وہی بہتر بتا سکتا ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ تربیت اس وقت شروع ہو جاتی تھی جب بچے 14-15 سال کے ہوتے تھے، بلکہ لڑکیوں کو تو اس سے بھی پہلے بچوں کو کام کی ذمہ داری دی جاتی تھی، اور بچے بغیر کسی چو چرا کے ہر کام کرتے تھے، بغیر سوچے سمجھے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں ہے۔ ان کے لیے ہر کام جو ماں باپ دیتے تھے یا بزرگ، وہ فرض عین ہوتا تھا، اور یہیں سے ذمہ داری شروع ہو جاتی تھی۔ زندگی کے ہر فرض کو ادا کرنا رسپانسبلٹی ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں یہ سب ایسا نہیں ہوتا۔ گزرتے وقتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس طرح سے بدل گیا ہے، یہ بوجھ اٹھانا چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیسے؟ کیوں؟ مثلاً آج کے دور میں ہر وقت پرسنل گیپ کی بات کی جاتی ہے، بچوں کی ان کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن کس حد تک؟ آپ 50% یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن 100% نہیں، کیونکہ آج کے دور میں سوشل میڈیا، گیمز، موبائل، ٹی وی، اور ایک وقت ہوتا تھا کہ ٹی وی، لیکن اب اس دور میں بچوں کی توجہ کسی ایک طرف رکھنا محال ہے۔ بچوں کے لیے چوکیدار کی حیثیت ہے ہماری، آپ کو ہر وقت ان کے ٹائم کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ جہاں معاشرے میں ہر انسان ایک پرسنل گیپ چاہتا ہے، وہاں اپنی مرضی کا اختیار چاہتا ہے، لیکن کیا یہ سب درست ہے؟ تو پھر تربیت کہاں گئی؟ تربیت کہاں سے شروع کی جائے اور کس طرح سے کی جائے؟ تو اس بات کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر شروع سے ہی توجہ دیں کہ بچہ ہمارا کیا کرتا ہے اور کس قسم کی آزادی چاہتا ہے۔ اس کے لیے کچھ اصول بنانے چاہیے گھر میں۔ ایک ماں اپنے گھر کا چوکیدار ہی تو ہوتی ہے،
और उसकी चौकीदारी होती है कि वो अपने बच्चे की हर चीज़ पर नज़र रखे और ये सोचे कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। और बच्चे को शुरू से ही ये बातें बतानी पड़ती हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी के लिए किस किस्म की ज़िम्मेदारी उठानी है। जो अपने घर में हर तरह से इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे, उनको शुरू ही से आदत हो जाती है कि हमने अपने घर की ज़िम्मेदारियों को उठाना है और किस तरह से अदा करना है। किसी बुज़ुर्ग का कॉल है, पिछले दिनों मैं पढ़ भी रही थी कि शादी एक हाथी की दुम है, जो कि शुरू में सिर्फ दुम नज़र आती है और पूरा हाथी तो शादी के बाद नज़र आता है। और फिर ना ख़त्म होने वाला सिलसिला हमारे सामने आता है कि किन किन ज़िम्मेदारियों का तयन किया जाए। मियाँ बीवी का प्यार ज़रूरत होती है, माशी हैसियत होती है, अपने घर की ज़रूरियात को किस तरह से करना है। शादी से पहले के दावे और बाद कुछ और होता है। मर्द का किरदार जो ज़िम्मेदारी है, वो तमाम काम वो शादी से पहले शुरू कर दे, वो कितना ज़िम्मेदार है। ये सब बातें ऐसी बातें हैं जो कि एक माँ ही अपने बच्चे की तरबियत कर सकती है। ये तरबियत एक बेटे की भी की जाती है और एक बेटी की भी की जाती है। बेटी की जो ज़िम्मेदारी है वो तो एक अलग ज़िम्मेदारी है। उसके लिए तो एक औरत को तैयार करना पड़ता है। हर वक्त अपनी बेटी के लिए हर तरह की ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन बच्चियां आज के दौर में इस किस्म की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वो नहीं चाहती कि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी डाली जाए। मैं तो कहती हूँ कि जैसे बेटियों की ज़िम्मेदारी उठाने की तवज्जो होती है और बेटियों को इसके काबिल बनाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह बेटों को भी इसके काबिल बनाना चाहिए कि आपने क्या करना है, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। और ये तरबियत मैंने इससे पहले नहीं देखी, कहीं नहीं देखी कि कुछ भी माएँ अपने बेटों को ये तरबियत देती हों। ये तो बच्चे अपने घर से सीखते हैं, लेकिन आज का दौर बहुत मुश्किल हो गया है। सीखने के साथ साथ बच्चों की तरबियत भी करनी चाहिए, बच्चों को बताना भी चाहिए कि आप अपने घर में इन्वॉल्व हैं। लेकिन आज के दौर में वीडियो और मोबाइल ने बच्चों को इस कदर बर्बाद कर दिया है कि बच्चे चाहते हैं कि हम सिर्फ बैठे रहें और हमारे माँ बाप हमारे मुंह के आगे ये चीज़ें रख दें। लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि कल ये सब कुछ कैसे बदल जाएगा। हमारे माँ बाप हमारे पास नहीं होंगे तो हम अपने घर की ज़िम्मेदारी कैसे उठाएंगे। और फिर जब शादी हो जाती है तो आज के दौर में देखा गया है कि दोनों ही मियाँ बीवी मोबाइल में बिज़ी होते हैं और फिर उसके आगे क्या होता है, उसके आगे फिर एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और औलाद हो जाए तो फिर उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। शादी से पहले के दावे और बातें कुछ और होती हैं और शादी के बाद की ज़िम्मेदारियाँ कुछ और होती हैं। और इसमें मर्द का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि शादी से पहले वो सिर्फ गिफ्ट देते हैं और सिर्फ लड़की को देखते रहते हैं और उसके लिए शेर पढ़ते रहते हैं या गाने गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन शादी के बाद ये शख्स तब्दील हो जाता है और सब कुछ इस तरह तब्दील हो जाता है कि सिर्फ चंद दिन के बाद ही आपको देखना पड़ता है कि सुबह मुझे क्या चीज़ ज़रूरत है, मेरे घर के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, मेरी बीवी की क्या डिमांड्स हैं, मुझे अपनी दाल रोटी के लिए क्या मेहनत करनी है और कितना टाइम देना है। ये सब बातें आपको शादी के बाद पता चलती हैं। इसी तरह लड़कियां शादी के बाद एक नई ज़िंदगी में दाखिल होती हैं और उनको नहीं मालूम होता कि डिग्री के साथ घर नहीं चलता। डिग्रियां अपनी जगह रह जाती हैं और घर की ज़िम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। हाँ, अगर आपकी डिग्री के साथ साथ अगर आपकी तरबियत में कोई ज़रूरी चीज़ें शामिल हों तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को चला सकते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट गुजारें या फैमिली के साथ गुजारें, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी फिर भी होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप कुछ असूल तय किए जाएं कि ज़िंदगी में हमने कौन सा काम किस वक्त करना है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर जॉब करते हैं तो हमें अपने आप को, अपनी रूटीन को किस तरीके से मेंटेन करना है। फैमिली के साथ आप रहते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं। लेकिन यही सब कुछ प्रॉब्लम करता है बाद में कि आप इंडिपेंडेंट रहने के आदी होते हैं, एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे होते हैं और जब आपके ऊपर सब प्रेशर पड़ता है एक फैमिली के साथ रहने का या इंडिपेंडेंट रहने का, तो आप सब कुछ मेंटेन नहीं कर पाते। आपने अपने किचन को किस तरह मेंटेन करना है, आपने अपने फ्रिज को किस तरह मेंटेन करना है, आपने अपनी लॉन्ड्री को, हर चीज़ को एक लड़की ने मेंटेन करना होता है, जो उससे पहले उसके बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो अकेली गुजार रही होती है ज़िंदगी। उसके पेरेंट्स सब कुछ कर रहे होते हैं, अब अचानक से सब कुछ उसके सर के ऊपर पड़ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब कुछ मेंटेन करना। इसलिए जो ख़वातीन या जो बच्चियाँ
अपने घरेलू लाइफ को शुरू से ही मेंटेन करती हैं और माँ बाप उन पे बोझ डालते हैं कि बच्चे आपने ये करना है, आपने इस तरीके से करना है, आपने कौन कौन सी ज़िम्मेदारियों को मेंटेन करना है, तो उनके लिए कुछ आसानी हो जाती है। लेकिन जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो भी एक तरीके से उनको मेंटेन करती हैं, अपने तरीके से करती हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही इस चीज़ों से आशना नहीं होते उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और उनके लिए ज़िंदगी सिर्फ एक ऐसी खूबसूरत लाइफ का स्टाइल होता है जिसमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ शादीशुदा कपड़े पहनने हैं और अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, तस्वीरें बनानी हैं और बस खाना और पीना। लेकिन ज़िंदगी ये नहीं होती, ज़िंदगी इससे बढ़कर कुछ होती है। वो इमली आलू बखारे का शरबत नहीं होती, उसको भी कुछ टाइम लगता है बनाने के लिए। तो इसलिए